Hello my dear students, today we are going to solve sample test paper for class 3 maths for the final exams. Here you can see the first section is knowledge. So let us start the question paper. If 9 is divided by 9, then quotient is equal to dash and remainder is equal to dash. So इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि what is the quotient and what is the remainder. जैसा कि हम देख सकते हैं, if you will divide 9 by 9, 9 ones are 9. So you won't get anything here in the remainder. So 9 divided by 9, then quotient is 1 and the remainder is nothing, so you can write 0. The product of 8 and 3 is, means you have to write 8 into 3 is equals to 24. So this is the answer. Write a multiplication fact for each of these addition facts. So the addition fact is given over here. You have to write the multiplication fact. How many times 8 are there? 3 times. So you can write 3 times 8. So this is equals to 3 8s are 24. This you have to write. Then 10 plus 10 plus 10 plus 10. How many times it is? 5. So you can write 5 times 10, that is equals to 50. The next question is, observe the picture and answer the following questions. Here's the question. Number of plates. How many number of plates are there? You can count. 3 number of plates are there. Number of apples in each plate. So there are 4 apples in each plate. Total number of apples. So you have to add 4 plus 4 plus 4. That is 12. And what is the multiplication fact for this? Means 3 into 4 is equals to 12. Multiplication fact means you have to write down the table form. Okay. The next question is, choose the most appropriate unit of measure from the following and complete the table. So 1 liter, 1 kg, 50 ml, 20 grams. ये सब आपको दिया है. You have to choose how will you count all these. So rice for 5 kg. कैसे count करेंगे आप, कैसे measure करेंगे? 5 लोगों के लिए राइस आपको परचेज करना है, then you will buy 1 kg. Water for a day for a person. एक आदमी एक दिन में कितना पानी पिएगा? 1 liter. Salt for 1 dish for a family. एक डिश में नमक कितना डलेगा? Oil for a dish for a family. Moving towards the next question, fill in the blanks. Our next section is understanding basic concepts. The first question is, half liter is equal to how much ml? You know that 1 liter is equal to 1000 ml. तो 1000 का half कितना हो जाएगा? It will be 500 ml. If 100 is subtracted from 897, the number you get is, means you have to subtract 100 from 897. You can do it over here. And then you can write down the answer. So what you got? 7, 9, 7. This is 7. Okay. The next question is, do as directed. So the question is from patterns. Extend the pattern to 4 more places. So what would be the pattern? You have to draw. जैसा कि आप देख सकते हैं, this pattern is showing upside. The half is upside, then it is moving towards the right, then down, then it will go towards the left. So you can draw it like this. Then again it will go upside. You can draw like this. Then again it will go on the right. And then again it will go down. So this is how the pattern is moving. और इसी को देख के आपको आगे पूरा ड्रॉ करना है. Classify the following into odd or even numbers. So what are odd and what are even numbers? This must you know. So I can say odd means किसी भी नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा, then it is an odd number. और किसी भी नंबर के लास्ट में
2, 4, 6, 8 और 0 आएगा, देन इट इज़ एन इवन नंबर. तो लेट अस चेक. Here it is 7, so 7 comes in odd, so this is odd. 8 comes in even, so this is even. 3 comes in odd, so this is odd. And 0 comes in even, so this is even. Likewise, you can solve for any question. Next question is, observe the table and answer the following questions given below. सो यहाँ पर कुछ डेटा आपको दे रखा है. फॉर जलेबी, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन दे लाइक जलेबी इज़ 3. काजू बर्फ़ी खाने वाले बच्चे 14 हैं. लड्डू 7, मैसूर पाक 25, रसगुल्ला 9. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु लाइक टू ईट दीज स्वीट्स. तो इनको हम प्लस कर लेंगे और लिख देंगे. सो यू विल टोटल एंड यू विल गेट 58. देन मोस्ट फेवरेट स्वीट इज़, अब वो स्वीट कौन सी है जिसको सबसे ज़्यादा बच्चे खाना पसंद करते हैं? दैट इज़ मैसूर पाक. आप कभी भी देख के भी लिखें तो स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दें बेटा, स्पेलिंग बहुत गलत करते हैं. कोशिश करें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो. लीस्ट फेवरेट स्वीट, जो बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं, वो है जलेबी. चिल्ड्रन हु लाइक काजू बर्फ़ी, काजू बर्फ़ी खाने वाले बच्चे कितने हैं देख सकते हैं आप, 14. यहाँ बताया है मोर देन चिल्ड्रन हु लाइक रसगुल्ला, तो रसगुल्ला और काजू बर्फ़ी को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कौन ज़्यादा है कौन कम है. तो काजू बर्फ़ी खाने वाले बच्चे 14 हैं और रसगुल्ला खाने वाले 9 हैं, मतलब कि मोर है आएगा इसमें. टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, इट इज़ 58. सो यू कैन राइट 58 हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबिलिटी टू कंप्यूट में देखते हैं. इंसर्ट द करेक्ट साइन. आपको करेक्ट साइन बताना है कि 6 में और 2 में ऐसा कौन सा रिलेशन है, विच साइन विल शो द रिलेशन सो दैट द आंसर इज 12. इट मीन्स 6 में +2 करने से तो 12 आता नहीं है, -2 करने से भी 12 नहीं आता है, डिवाइड करने से भी नहीं आता है. देन व्हाट इज लेफ्ट? मल्टीप्लाई. सो 6 2s are 12. ऐसा आपको प्रिडिक्ट करना है, सोचना है, सोच के तब लिखना है. 70 और 10 के बीच में क्या रिलेशन है? 70 में से हम क्या ऐसा करेंगे कि आंसर हमारा 7 आएगा. तो 10 की टेबल में 7 टाइम्स 70 आता है, सो डिवीजन विल कम हियर. 10 7s are 70. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड. इनको अरेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आपको ऐड करना है. तो अरेंज करते समय एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि जब आप डेसिमल वाले नंबर लिखते हैं, एक तो इनको थोड़ा दूर दूर लिखें. 26 डेसिमल 7 5 14 डेसिमल 4 0, इनको प्लस करेंगे. हमेशा याद रखेंगे कि प्लस के डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है. बिल्कुल नॉर्मल एडिशन की तरह हम इसको करेंगे. दिस इज 41 डेसिमल 15. नेक्स्ट है हमारा अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा नंबर बड़ा है. तो 204 बड़ा है, इसलिए हम 204 को ऊपर लिखेंगे. अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैरी ओवर ले लेगा. 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पर 3 बच जाएगा. सॉरी 4, ओके 4 में से 3 गया 1, देन 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर बचेगा 1. सो द आंसर इज 141.25. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस इफ दीज बलून्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग 3 गर्ल्स हाउ मेनी बलून्स विल ईच गर्ल गेट. कि सभी लड़कियों को कितने बलून्स मिलेंगे अगर ये बलून्स हमें 3 गर्ल्स में बांटने हैं तो सबसे पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं. काउंट करने के लिए हम इसके अंदर 1 2 लिख देंगे. तो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ़ बलून्स हमारे पास 15 है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमारे पास 3 है. तो हम ऐसे रिलेशन बनाएंगे कि 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है. 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, जैसा कि आप देखते हैं 3 × 5 = 15.
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 5। यानी हर लड़की को कितने बलून्स मिलेंगे? 5। सो इट्स वेरी सिंपल बेटा, थोड़ा सा सोच के करेंगे, आराम से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। लास्ट सेक्शन है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का। चूज द करेक्ट आंसर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 6 इन द नंबर 465। ओके, देख लेते हैं हमारा जो नंबर है 4 वो कौन सी प्लेस पर है? ये है वंस, टेंस और ये है 100 प्लेस। तो 4 का हो गया 100, 400। और दूसरा नंबर है हमारा 6 जो कि टेंस प्लेस पर है, तो 60 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 340। तो 340 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ बॉक्स होल्ड्स 10 पेंसिल। हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड फॉर 110 पेंसिल्स? ओके, कोई बात नहीं। एक बॉक्स है हमारा जिसमें 10 पेंसिल हैं और हमारे पास टोटल 110 पेंसिल हैं। तो हमें कितने बॉक्सेस चाहिए उनको पैक करने के लिए? इसके लिए हम क्या करेंगे? 110 को डिवाइड कर देंगे कितने से? 10 से। तो 10 का टेबल सभी को आता होगा। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 10 ज़ा 100 सभी को पता है और 10 11 ज़ा 110 होता है। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर 11 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ देयर आर 56 कैंडल्स पैक्ड इक्वली इन 7 बॉक्सेस। टोटल हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं? बॉक्सेस लिख लेते हैं हम, कितने हैं? 7 है। और कैंडल्स कितनी हैं हमारे पास? कैंडल हमारे पास है 56। तो अब आपको से पूछा गया है देन हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स। तो आप ये सोचिए कि 7 के टेबल में 56 कहाँ पर आता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 8, यानी कि हर बॉक्स में 8 कैंडल्स हैं। ऑब्जर्व द प्राइस टैग ऑफ ईच आइटम गिवन बिलो एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ। एज यू कैन सी, यहाँ पर एक डॉल है, डॉल का कॉस्ट है 60 रुपीज़ 50 पैसे, कार का कॉस्ट है 125 और एक चॉकलेट है आपके सामने, उसका कॉस्ट है 12 रुपीज़। तो 1 डॉल एंड 1 बिस्किट पैकेट मीन्स आपको क्या करना है? एक डॉल खरीदनी है और एक आपको बिस्किट का पैकेट खरीदना है या केक खरीदना है, कुछ भी। तो इन दोनों का कॉस्ट कितना हुआ टोटल? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इतने पैसे खर्च किए, तो टोटल क्या होगा? आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा कि जिस नंबर में डेसिमल कहीं नहीं होता उसमें डेसिमल लास्ट में होता है। तो आप यहाँ पे 12.0 भी लिख सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। 60 डेसिमल 50 और 12 डेसिमल 0। अब आप एक और 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए। अब इसको आप ऐड कर देंगे 72 डेसिमल 50, यानी हमने कितने पैसे खर्च किए? 72 रुपीज़ 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 3 कार्स एंड 1 बिस्किट पैकेट। आपने अगर ये गाड़ी 3 खरीदी, 3 कार्स खरीदी, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 125 को। आपका आंसर आएगा कितना? आंसर आएगा 300। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइड में रफ वर्क का कॉलम बनाइए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमेशा मैथ्स में सॉल्व करके ही करना चाहिए बेटा। तो जैसे कि आपने 3 को 125 से मल्टीप्लाई किया, आपको 375 रुपीज़ मिल गए और 1 बिस्किट का कॉस्ट है ₹12। तो आपको इसमें 12 रुपीज़ और प्लस कर देने हैं और आपका टोटल मनी आ जाएगा ₹387। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज कलेक्टेड इन अ क्लास रिगार्डिंग फेवरेट गेम। ये इन्फॉर्मेशन है आपके सामने और आपको इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके यहाँ पर एक ग्राफ टाइप बनाना है। यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ सर्कल फॉर ईच चाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द गेम दे लाइक द स्पेस बिलो। गेम आपके सामने बता दिया गया है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है और टेनिस है। एक बार फिर से समझ लेंगे बेटा, जैसे एक फेस बनाना है एक बच्चे के लिए, तो क्रिकेट में अगर 4 है तो क्रिकेट का सिंबल यहाँ पे कहाँ है? यहाँ है। तो हमें इसके ऊपर 4 फेसेस बनाने हैं, 1 2
3 और ये 4, हमने 4 फेसेस बना दिए। नेक्स्ट जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन कितने बच्चे खेल रहे हैं 8, यानी कि हमें इसके ऊपर 8 फेसेस बनाने हैं। बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं 5 हैं, तो इसके ऊपर 5 फेसेस बनेंगे। टेनिस खेलने वाले बच्चे 3 हैं, तो इसके ऊपर 3 फेसेस बनेंगे। आराम से बनाएंगे बेटा इसे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, टोटल बच्चे कितने हैं। अब आप इन सबको प्लस कर देंगे, 8 + 4 = 12, 12 + 5 = 17, 17 + 3 = 20, सो देर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मोस्ट स्टूडेंट्स लाइक, बहुत सारे बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे कौन सा गेम खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, हम यहाँ लिखेंगे बैडमिंटन। थैंक यू बेटा, आप पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम देंगे।